علیکم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم نقوی اور سب سے پہلے خبر دیں پنواکل سے۔ پنواکل بار کے سابقہ صدر علی محمد کی رہائش گاہ پر جمعیت علماء اسلام سندھ کے سیکرٹری جنرل راشد محمود سمرو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ کے نام پر بل پاس کروایا، جو بل تمام سیاسی جماعتوں کے مشورے کو رد کر کے پاس کروایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے امیدواروں کے فارم رد کروائے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی نہیں، یہ بھٹو کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھٹو کے جماعت ہے تو آؤ سامنے کرو فیصلہ، پیپلز پارٹی وڈیروں کی جماعت ہے لیکن عوام میرے ساتھ کھڑی ہے۔ سکھر کے رہائشی غلام فاروق مہر، کرم اللہ کھوسو، شریف کھوسو، عثمان کھوسو نے سکھر پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سکھر کے لینڈ گریبر بلڈر راؤ شاکر کے خلاف مختلف تھانوں میں ہمارے عزیزوں کے قتل کے 3 کیسز درج ہیں اور عدالتوں میں کیس بھی زیر سماعت ہیں، لیکن اب تک قتل میں ملوث ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ تمام ثبوتوں کے باوجود 2014 سے لے کر 2022 تک کسی بھی کیس میں چارج فریم نہیں ہوا اور عدالت سے بنا کسی ٹرائل کے انہیں بری کر دیا گیا، جو متاثرہ افراد کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سمیت بالا حکام سے مطالبہ کیا کہ لینڈ گریبر راؤ شاکر کے خلاف قتل کیسوں کو ختم کرنے پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے اور قتل میں ملوث راؤ شاکر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ملوث سرکاری افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لا کر متاثرین کو انصاف و تحفظ فراہم کیا جائے۔ چشتیاں بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری آفتاب احمد گجر کی قیادت میں چشتیاں کے وکلا کے وفد کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات۔ عمران خان کو بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں چشتیاں سے محمد عدیل ذکی۔ جی بالکل، چشتیاں بار ایسوسی ایشن چشتیاں کے صدر چودھری آفتاب احمد گجر کی قیادت میں جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن محمد نواز بھٹی، سابق صدر بار ایسوسی ایشن چودھری رؤف سجاد چیمہ، سابق صدر بار ایسوسی ایشن چشتیاں ریاض اقبال خان بڈیرہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تاریخ میں وکلا کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ملک اور قوم کو خوددار اور خود مختار بنانا ہے۔ اسی موقع پر وکلا کے وفد نے عمران خان کو بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی۔ جی بھوانہ حکومت کی عوام پر مہنگائی کے وار جاری، بے روزگاری میں پسی ہوئی عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 99 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ حکومت آئی تھی مہنگائی ختم کرنے، مگر ایک طرف لوڈ شیڈنگ، دوسری طرف بجلی کی قیمتوں میں تیسری بار اضافہ کر دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 500 سے 700 روپے کمانے والا مزدور 10-15 ہزار روپے کا بل کیسے ادا کرے گا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اپنے وعدوں کے برعکس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بلوں میں کمی لائی جائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے۔ رخ کرتے ہیں کمیر سٹی کا، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما سابق ایم پی اے صوبائی وزیر زراعت پنجاب ڈاکٹر فاروق جاوید نے اپنے ڈیرے پر پبلک سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ نون کے ورکرز اور عہدیداران کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق ایم پی اے عارف والا ڈاکٹر فاروق جاوید نے A1 TV سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے حلقے کی عوام اصل میری طاقت ہے۔ حلقے میں ترقیاتی کام عارف والا تا ترکنی روڈ تا 78 EB تا 92 EB روڈ، دلو والا بنگلہ تا چک نمبر 48 EB تا چک نمبر 50 EB اڈا چک نمبر 52 EB بلوچا تا 351 اڈا چکیاں والا ترکنی روڈ کارپیٹ روڈ اڈا 52 EB ترقیاتی فنڈ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف سے منظور کروا لیا ہے۔ عارف والا ترکنی روڈ اور چک نمبر 48 EB تا چک نمبر 50 EB روڈ چک روڈ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ بھاول نگر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وسیم کی زیر صدارت ضلع میں مویشیوں میں لمپی سکن بیماری کے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک میڈم رضوانہ اکرم اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے رپورٹر اسلام قریشی سے۔ بالکل، ایڈیشنل ڈائریکٹر محکمہ لائف سٹاک میڈم رضوانہ اکرم کی جانب سے ضلع بھر میں لمپی سکن کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے لمپی سکن بیماری کے علاج سے معالجہ
और हिफाजती वैक्सीनेशन के हवाले से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराने के लिए चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की और कहा कि रेवेन्यू स्टाफ के जरिए और महकमा लाइफ स्टॉक मैडम रिजवाना अकरम की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया एरियाज में अक्सर 9 सर्वे कराए जाएं, हकाइक का जायजा ले ताकि इसके मुताबिक हिकमत अमली मुरतब की जा सके। मैडम रिजवाना ने हिदायत की कि एक यौम के अंदर महकमा रेवेन्यू लाइफ स्टॉक की टीमें इलाका नंबरदारान के हमरा मवेशी वाल के पास मौजूद मवेशियों में लैम्पी स्किन बीमारी से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट फराहम की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि ज़िला में कोई भी मवेशी लैम्पी स्किन से तहफ़्फ़ुज़ की वैक्सीन लगवाने के बगैर सर्टिफिकेट दिखाए दाखिल ना हो। उन्होंने ज़िला भर में लैम्पी स्किन बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की वैक्सीन लगाने की मुहिम को तेज़ करने की हिदायत की। जी मियां चन्नू से आपको खबर दें, साहबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला सियालवी की कॉल पर हंगामी इजलास। साहबजादा मोहम्मद अब्दुल्ला सियालवी की ज़ेरे सरपरस्ती मुनक्किद हुआ, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इजलास में शौकत अली फरीदी, अलामा बशारत अली मजहर, अमीन चौहान, अंजुमन ताजरान के सदर समेत उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि भारत के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियाँ निकाली जा रही हैं, उन पर भारतीय हुकूमत का जुल्म और तशद्दुद को फौरी बंद करवाया जाए। भारतीय हुकूमत ने अगर जुल्म बंद न किया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर की तरह जिला रहीम जार खान में भी डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए हैं, जहां वोटर लिस्टों को अवामी मुआयने के लिए रखा गया है। जिला रहीम जार खान में कुल 398 डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। हाँ जी बिल्कुल, रहीम यार खान में 398 डिस्प्ले सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जहां वोटर अपने इलाके की गैर हतमी फहरिस्तों का मुआयना कर सकते हैं और अपने खानदान के अफराद के वोट की तस्दीक के साथ साथ किसी भी गैर मुतलका वोटर और फौजशुदा अफराद के अखराज के लिए एतराज़ भी जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए उन डिस्प्ले सेंटर पर फार्म 16 रखे गए हैं। इसके साथ अगर किसी शख्स की उम्र 18 साल हो चुकी है और उसका नाम इस इलाके की वोटर लिस्ट में दर्ज करवाना चाहते हैं तो उनके लिए इस डिस्प्ले सेंटर के इंचार्ज से फार्म 15 तलब कर सकते हैं और उस फार्म को पुर करके डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज को जमा करवा दें, जिसको जरूरी कार्रवाई के बाद उस ब्लॉक की वोटर लिस्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा। इसके अलावा उन डिस्प्ले सेंटर पर फार्म 17 की भी कसीर तादाद मुहैया की गई है, जिस पर वोटर अपने कवायफ में किसी किस्म की तब्दीली को भी ठीक करवा सकता है, मसलन घराना नंबर की तब्दीली, सिलसिला नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर में कोई फर्क वगैरह। ओद शरीफ के नवाही इलाके नुनारी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 40 साल खातून शमा माई जो मिर्गी के मर्ज में मुब्तला थी, समरवा नहर के किनारे कपड़े धोने के दौरान अचानक मिर्गी के दौरा पड़ने से नहर में जा गिरी। वाकये की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में खातून की डेड बॉडी तलाश कर ली गई। शमा माई की अचानक मौत का सुनकर घर में कोहराम मच गया। मोहसिन उर्दू और मशहूर ज़माना किताब रवा दमा के मुसन्निफ पीर अब्दुल खालिक हसनात ने अपनी नई किताब तहकीकात हसनात, जो तसव्वुफ पर लिखी गई है, जो कि इस्लाम का अहम तरीन शोबा है। इस किताब का मुताला अवाम व खास के लिए ना सिर्फ इंतहाई मुफीद बल्कि दीनी और दुनियावी उमूर में कामयाबी हासिल करने का अहम तरीन जरिया भी है। और यही वजह है कि आलमी शोहरत याफ्ता किताब रवा दमा के मुसन्निफ पीर अब्दुल खालिक हसनात को मुख्तलिफ ममालिक के बुजुर्गान दीन ने यह किताब लिखने पर मुबारकबाद भी पेश की। विहाड़ी से आपको खबर दें, जमीयत उलमा इस्लाम जिला विहाड़ी के ज़ेरे एहतमाम बीजेपी रहनुमा की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ज़िलाई अमीर JUI मौलाना जमशेद इकबाल ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत हमें जान से भी अजीज़ है। हम किसी को हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी चौधरी मकसूद अहमद ने कहा कि बीजेपी की तर्जुमान की जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हैं और भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गुस्ताखे नूपुर शर्मा को सख्त सजा दी जाए। तहसील अमीर मौलाना उमर फारूक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर पूरी उम्मत मुसलमान में गम और गुस्सा पाया जाता है। जब तक गुस्ताखे तर्जुमान बीजेपी को सजा नहीं दी जाती, भारतीय मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में भारतीय मुखालिफ नारे लगाए गए और भारत के खिलाफ करारदाद मजम्मत भी पेश की गई। एहतजाजी मुजाहरे के इख्तिताम पर कारी जफर अहमद ने मुल्क की सलामती और अमन की दुआ कराई।
कराची बिलाल कानूनी पुलिस की टेक्निकल बुनियादों पर स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 रुकनी बाबा बंगाली डकैत समेत सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट में 100 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV नबी बख्श खास खेली से। जी न्यू कराची थाना बिलाल कानूनी पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर स्टेट क्रिमिनल के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी बाबल बंगाली डकैत समेत नदीम बंगाली, गफूर बंगाली, आसिफ बंगाली और शानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि गिरफ्तार मुलजमान नदीम बंगाली ने इंकशाफ किया है कि वो ब्लॉक मोबाइल खुलवाने के 1000 जबकि IMEI तब्दील करने के 5000 दिया करता था। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुलजिम शानी ने बताया कि वो डकैतों से अच्छे मोबाइल फ़ोन 15 से 20 हज़ार में ख़रीदता था। नदीम बंगाली और गफूर बंगाली से अच्छे मोबाइल फ़ोन लेकर IMEI तब्दील करके जिसके 5000 लेता था। डकैतों से कम दामों मोबाइल फ़ोन खरीद कर IMEI तब्दील करके महंगे दामों पर फ़रोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से बिलाल कानून की हदूद से छीना हुआ iPhone 12 Pro Max भी बरामद कर लिया गया है। जबकि कब्जे से 4 अदद 30 बोर पिस्टल, IM तब्दील करने का सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, USB डिवाइस, सॉफ्टवेयर, 15 से ज़्यादा छीने हुए मोबाइल फ़ोन और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। जबकि मुलजमान से बरामद शुदा मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज के तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। जी सूबाई वजीर उशूर ज़कात खैबर पख्तूनख्वा अनवर ज़ेब खान ने ज़राई ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नूर मोहम्मद खान के हमरा इलाज और बहाली मराकज़ बराए आइस व मनशियात सेंटर, सोशल वेलफेयर रिहेबिलिटेशन एंड ड्रग एडिक्ट सेंटर, केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हस्पताल और हक आवाज़ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अचानक दौरे किए। मज़ीद तफसीलात पेशावर से नवाजुद्दीन की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर खैबर पख्तूनख्वा अनवर ज़ेब खान ने ज़िली ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नूर मोहम्मद खान के हमरा इलाज और बहाली मराकज़ बराए आइस व मनशियात सेंटर, सोशल वेलफेयर रिहेबिलिटेशन एंड ड्रग एडिक्ट सेंटर, केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अस्पताल और द हक आवाज़ रिहेबिलिटेशन सेंटर के अचानक दौरे। सूबाई वजीर अनवर ज़ेब ने आइस नशा बहाली सेंटर्स में मरीजों की इयादत की और इनको दी जाने वाली सेहत सहूलियात का जायजा लिया। इस वक्त सोशल वेलफेयर रिहेबिलिटेशन एंड ड्रग एडिक्ट सेंटर में 210, केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अस्पताल में 100 जबकि द हक आवाज़ रिहेबिलिटेशन सेंटर में 157 मरीज ज़ेर इलाज है। सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान ने कहा कि खान साहब के विजन के मुताबिक ये इनिशिएटिव लिया है और ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। तकरीबन 1200 एडिक्ट बंदे हमने अभी तक अपने मुख्तलिफ सेंटरों में डाले हैं और इनके लिए हुकूमत ने और ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से हमने काफ़ी लोगों को ये फैसिलिटीज़ दी है और हमने तकरीबन 3 करोड़ रुपये जो है ये हमने अलखिदमत दोस्त फाउंडेशन को और 75 लाख रुपया अलखिदमत फाउंडेशन को और 75 लाख रुपया हमने केयर फाउंडेशन को ये हमने रिलीज़ किए हैं। और जिधर भी ये बंदे हमें मिलते हैं एडिक्ट तो हम ये लाएंगे और इस सेंटर में हम डालेंगे और इनका इलाज करवाएंगे। सूबाई हुकूमत और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्त वेलफेयर फाउंडेशन को 3 करोड़ और खिदमत फाउंडेशन और केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को 75 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस वक्त पेशावर में मजमूई तौर पर 1200 नशे के आदी अफराद को मुख्तलिफ जगहों से उठाए गए और मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में ज़ेर इलाज है। कैमरामैन इनायत के साथ नवाज खान, A1 TV, पेशावर। सकरंद नेशनल हाईवे के करीब गांव जाफर जमाली के मुकाम पर टंडू आदम जाते हुए 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, नतीजे में मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इमदाद के लिए तलका अस्पताल सकरंद मुंतकिल किया गया। बुरे वाला साहब को खबर दें, भारतीय इंतहा पसंद जमात BJP की खातून रुकने पार्लियामेंट की तरफ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ बुरे वाला में फार्मा कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नामूस रसालत के हक में और गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई भी कलमा गो बर्दाश्त नहीं कर सकता और नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शुरका ने भारत के साथ हर तरह के तिजारती और सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया।
जूही अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बाइस 1 साल बच्ची अंबर कोरी दम तोड़ गई। वुरसा का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौके पर बच्ची के वुरसा ने इल्जामात आयद करते हुए कहा कि सुबह 6 बजे बच्ची को अस्पताल लेकर आए तो ड्यूटी डॉक्टर्स इमरजेंसी में मौजूद नहीं था। अस्पताल इंतजामिया 2 घंटे तक रुलाते रहे। उन्होंने कहा कि बच्ची आखिरी सांस ले रही थी तो हम एम्बुलेंस के लिए पुकारते रहे, मगर अस्पताल इंतजामिया तेल के पैसे मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बाइस बच्ची दम तोड़ गई। उन्होंने मुतालबा किया कि जूही अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस आमद पर पुलिस के चाको चौबत दस्ते ने सलामी पेश की। डीपीओ हसन इकबाल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा हसन इकबाल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नए तैनात होने वाले डीपीओ ने सबसे पहले यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बाज़ा उन्होंने इंचार्ज ब्रांचेस से मीटिंग करते हुए कहा कि दफातर में आने वाले साइलिन से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर शहरी के लिए हम वक्त खुले हैं। शहरियों की खिदमत के लिए मैं 24 घंटे दस्तयाब हूँ। मिंजनाबाद में तहरीक लब्बैक की जानिब से पावर शो का इनेकाद किया गया। इंडिया की गुस्ताखी के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली गईं। तहरीक लब्बैक पावर शो नेशनल बैंक चौक पर किया, जिसमें जनूबी पंजाब और ज़िलाई क़यादत के ओहदेदारान ने शिरकत की। शहर भर में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों की फजा गूंज उठी। तकरीब में मुख्तलिफ उलमाए कराम और PP 237 MPA के उम्मीदवार मियाँ राशिद महमूद वट्टू, एडवोकेट मलकू ने खिताब किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल जी, मंचनाबाद में तहरीक लब्बैक की जानिब से जो है पावर शो का इनकाद किया गया है, जिसमें इंडिया में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ जो है मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकाली गई हैं। तहरीक लब्बैक पावर शो का इनकाद जो है वो मंचनाबाद के मेन नेशनल बैंक चौक में किया गया है। मंचनाबाद में गुस्ताखी के खिलाफ निकलने वाली रैलियां जो है वो नेशनल बैंक चौक में अख्ताम पजीर भी हुई हैं। तहरीक लब्बैक पावर शो जो है वो मंचनाबाद के मेन चौक में किया गया था, जिसमें जनूबी पंजाब ज़िले क़यादत ओहदेदारान की शिरकत भी हुई है। शहर भर में लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों की फ़ज़ा भी गूंज उठी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो है एक समंदर की तादाद थी, जिसमें तकरीब में मुख्तलिफ उलमाए कराम और PP 237 MPA के उम्मीदवार मियाँ राशिद महमूद वट्टू, एडवोकेट मलकों की जानिब से खिताब भी किया गया है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी और इंडिया में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ जो है भरपूर एहतजाज भी किया गया। जी, इलाकाई खबरों से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।